Hello students, this is lecture number 3 of unit number 2. In this lecture we will discuss the Modi method. So earlier in the previous two lecture we discussed following method: northwest corner rule, second row minimum method, column minimum method, least cost method, and next is Vogel's approximation method. So in all the five methods we find out the initial basic feasible solution. So that was the first step of solving any transportation problem. Now further, after calculating the basic feasible solution, we can also calculate the optimal solution. So if in a question it is given that find the optimal solution, it means अगर आपने केवल वैम लगा के छोड़ दिया तो you will not get full marks. ठीक है, आपको full marks नहीं मिलेंगे. You also need to find out the optimal solution. Now this Modi method is used to find out the optimal solution, or we can say this is nothing but iteration towards an optimal solution. और सेम क्वेश्चन जो कि हमने लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था, लेट अस टेक द सेम क्वेश्चन. देयर इज अ मिल्क प्लांट, 3 मिल्क प्लांट है ABC which is producing some amount of milk. There are 3 warehouses, 4 warehouses जहाँ पर डिमांड है 7532 million liter milk respectively. Now when we solve this problem by the Vogel's approximation method, तो हमने देखा था इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हो. वैम से जो हमारा आंसर आया था that was best. We get the best solution as compared to other 4 method. We get best solution by Vogel's approximation method. So let us start the question from here. Let us assume this is initial basic feasible solution. ठीक है, this is initial basic feasible solution. Now we have to apply Modi method. So how we have solved this question by Vogel's approximation method. This is the solution. So for this solution you can see my previous video of lecture number 1. Now what is Modi method? Modi method हम क्या हम करते हैं? First, after determining the basic feasible solution by WEM, first we perform the optimality test. Now what is optimality test? In this question, if we talk about in this question is having matrix of 3/4. तो 3/4 का मतलब है number of rows are 3 and number of column are 4. तो let us calculate m plus m minus 1. ये कितना हो जाएगा? 3 plus 4 minus 1 is equal to 6. Now m plus n minus 1 की वैल्यू आ रही है 6 and number of allocation कितने हैं जब हमने वैन से सॉल्व किया था? 1 2 3 4 5 6. So this is equal to number of allocation. This is equal to number of allocation. यानी number of allocation जब m plus n minus 1 के बराबर हो जाते हैं, then this question is eligible to check optimality test. So we can check optimality. We can do optimality test. Now this is one condition, m plus n minus 1 should be equal to number of allocation. The second condition is this m plus n minus 1 allocation should be in independent position. तो इसका मतलब ये है कि this should not form a loop. अगर allocation हमारा इस तरीके से होता कि अगर ये 4 allocation इस तरीके से होते और ये loop बना देते, ठीक है, तब हम पहले इस loop को दूर करते और उसके बाद हम मोदी मेथड लगाते. So these two conditions are need to be checked before we apply a Modi method. ठीक है, तो अगर एलोकेशन यहाँ पर है 6 5, अगर सपोज एलोकेशन एक एलोकेशन यहाँ पर होता 4, एक एलोकेशन होता यहाँ पर होता, तो ये भी एक लूप बन जाता. अगर लूप बन गया तो हम आगे अभी मोदी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इस लूप को दूर करेंगे, इस लूप के हिसाब से हम एलोकेशन को मॉडिफाई करेंगे, देन वी विल अप्लाई फर्दर. So you can say this is a closed loop. In this matrix allocation cell are not in
independent position. For example, if I say यहाँ पर 1 5, यहाँ पर है एलोकेशन हमारा 1, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 1. अगर यहाँ पर एक 4 एलोकेशन और होता तब ये लूप बन जाता. तो उस केस में हम अभी मोदी मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, हमें जो है पहले इस लूप को दूर करना पड़ता. बट इन दिस क्वेश्चन वी कैन अप्लाई द मोदी मेथड. तो हाउ वी विल अप्लाई द मोदी मेथड? नाउ यू कैन सी अप्लाई मोदी मेथड. Iteration number 1. In iteration number 1, the first step is see the cost matrix. पहले क्या करो आप cost matrix को लिख लो. तो in this Venn solution, cost matrix is 2, 3, 1, 5, 15 and 9. So these are the value of cost. This is nothing but the cost of transporting wheel from plant to warehouses. तो ये हमने लिख लिया 2, 3, 1, 5, 15, 9. 2, 3, 1, 5, 15, 9. तो with respect to this we need to calculate a dual variable. कुछ dual variable इसमें हमें calculate करने पड़ते हैं. Now what is dual variable? Dual variable are u1, u2, u3, v1, v2, v3 and v4. ठीक है. And the properties of the dual variable is that sum of this cost matrix is equal to ui plus vj. Now, based upon this formula, we can calculate u1 plus v1 is equal to 2, u1 plus v1 is equal to 2, u1 plus v2, u1 plus v2 is equal to 3, u2 plus v4 is equal to 1, u3 plus v1 is equal to 5, u3 plus v3 is equal to 15 and this u3 plus v4 is equal to 9. So you can see number of dual variables are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and number of equations are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 equations are there and 7 unknowns are there. तो एक किसी unknown किसी variable को मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा. तो लेट अस से मैंने v1 को ज़ीरो किया. अच्छा, v1 के अलावा आप u1 को भी ज़ीरो कर सकते थे या किसी और ड्यूल वेरिएबल को आप ज़ीरो कर सकते थे. दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. सॉल्यूशन आपका तभी भी वैसा ही आएगा. तो व्हेन वी पुट v1 इज इक्वल टू 0, जब हमने v1 को 0 पुट कर दिया तो u1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू उसकी. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी. इस मैट्रिक्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा. u1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2. ठीक है, v1 की वैल्यू 0 है तो u3 की वैल्यू कितनी आ गई? u3 की वैल्यू आ गई 5. u3 की वैल्यू 5 आ गई. देन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v3 एंड v4. v3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. v4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. v1 की वैल्यू हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं. ठीक है, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? u1 की वैल्यू है 2 तो 3 माइनस 2. इक्वेशन नंबर 2 से देखो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. नाउ u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन से देखो आप, u2 की वैल्यू हो जाएगी u2 इज इक्वल टू 1 माइनस v4 की वैल्यू कितनी है? v4 की वैल्यू है 4 तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3. तो u2 जो ड्यूल वेरिएबल है उसकी वैल्यू आई -3. नाउ this ui plus vj is called implicit cost. ठीक है, it is called implicit cost. तो हम ये cost matrix, implicit cost matrix बना रहे हैं for the vacant cell. अब vacant cell का मतलब क्या है? This is step number 2. Step number 1 है हमने ड्यूल वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि आ गई v1 इज इक्वल टू 0, v2 इज इक्वल टू 1, v3 इज इक्वल टू 10, v4 इज इक्वल टू 4, u1 इज इक्वल टू 2, u2 इज इक्वल टू -3 एंड u3 इज इक्वल टू 5. नाउ हम इम्प्लिसिट कॉस्ट मैट्रिक्स हमें निकालनी है फॉर द वैकेंट सेल. वैकेंट सेल क्या हो गए? वैकेंट सेल वो कहलाते हैं जहां पर हम एलोकेशन नहीं देते हैं. तो इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड दिस सेल इज वैकेंट सेल, दिस सेल इज वैकेंट सेल, दिस एंड दिस, ये सारे के सारे सेल जो है वो वैकेंट सेल हैं. नाउ यू कैन सी
this and this cell is vacant cell. Vacant cell is highlighted in the yellow color. तो हम क्या करेंगे, implicit cost निकालेंगे which is nothing but the summation of ui plus vj. तो 2 plus 10 कितना हो जाएगा 12, 2 plus 4 कितना हो जाएगा 6, minus 3 plus 0 कितना हो जाएगा -3, -3 plus 1 is equal to -2 and 5 plus 1 is equal to 6, -3 plus 10 is equal to 7. So this is the implicit cost matrix for the vacant cell. So I have written here 12, 6, -3, -2, 7 and 6. -3, -2, 7 ये मैंने यहाँ पर लिख दी और this represent the value of u1 dual variable. Now third step is we want to calculate cell evolution matrix. Now what is cell evolution matrix देख लेते हैं इसे हम. तो अभी हमने क्या करा, पहले हमने कॉस्ट मैट्रिक्स निकाली, उसके बाद हमने इस फॉर्मूले से हमने u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 की वैल्यू निकाली और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, हमने एक वैकेंट सेल की मैट्रिक्स निकाली. अब वैकेंट नाउ फॉर एनी वैकेंट सेल ui plus vj इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, cij इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट. तो जो भी न्यूमेरिकल में हमें दे रखा होता है, तो लेट अस सी, अगर ये न्यूमेरिकल है हमारा, इस न्यूमेरिकल में 2, 3, 11 हैं, दीज आर द ओरिजिनल कॉस्ट, ये कभी भी चेंज नहीं होगी. न्यूमेरिकल में जो कॉस्ट दे रखी है इट विल नॉट चेंज, ये हमेशा थ्रू आउट द क्वेश्चन रिमेन सेम. तो जो हम टर्म यूज कर रहे हैं cij इज द एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है, तो cij जब i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू 1 रख दो, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, फर्दर i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 3 तक, और j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1, 2, 3, 4. तो हमें 4/4 3/4 का मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा. यानी इन ईच एंड एवरी सेल वी आर हैविंग अ सम कॉस्ट. नाउ चेक फॉर एवरी एम्प्टी सेल. ठीक है, हमें क्या करना है, सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स निकालना है. यानी हर एक सेल में हमें cij माइनस ui प्लस vj ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इफ इट इज कमिंग ग्रेटर देन 0, ठीक है, अभी इक्वल टू 0 वाला केस भी बताऊंगा मैं. अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है हमारे पास जो वैम से जो सॉल्यूशन आया वो सबसे अच्छा था, उसके आगे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच नहीं होगा. इफ इट कम लेस देन और इक्वल टू 0, if it is come less than 0 it means solution is not optimal, we can iterate towards an optimal solution. यानी आगे अगर हम मोदी मेथड लगाएंगे तो हमें बेहतर सोल्यूशन मिलेगा. बेहतर सोल्यूशन का मतलब ये 10,200 पहले आ रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब वो रिड्यूस होके हमें मिल जाएगा. नाउ अगर ये 0 आ जाएगा तो क्या होगा, अगर ये 0 आ जाएगा तो क्या होगा, फर्दर अगर हम इटरेशन करेंगे मोदी मेथड से तो उस इटरेशन से टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होगी, बट ये हो सकता है कि एलोकेशन चेंज हो जाए, बट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होगी. क्लियरली दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो अगर 0 आ जाएगा तो यू कैन से दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि हम एक या एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन मिलते थे हमें सिंप्लेक्स में, ये बिल्कुल उसी तरीके से है. नाउ कैलकुलेट द सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स, जो कि मैंने बताया इट्स अ डिफरेंस बिटवीन cij माइनस ui प्लस vj. तो दिस सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू वैकेंट सेल ओनली. तो यहाँ पर देखो, सो वी विल कैलकुलेट सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स वैल्यू cij माइनस ui प्लस vj विद रिस्पेक्ट टू वैकेंट सेल. ठीक है, तो वैकेंट सेल जो कि मैंने येलो से दिखा रखा है, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू सेल. तो ये सेल आपका 3, 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसी को माइनस करेंगे. 11 माइनस 12 इज इक्वल टू -1, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1 एंड 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 1. तो इन दिस सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, अगर कोई भी सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, इट मीन्स लेस देन 0 हो जाए, इट मीन्स वी नीड टू डू इटरेशन टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. यानी आगे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, उसे सर्च करना है. इसका मतलब हमें सर्च करके हमें ये पता चल गया अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है
तो हमें ये पता चल गया है कि कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है वो इससे बेटर सॉल्यूशन, जो कि हमारा वैम से आ रहा था 10,200 रुपीज़ आ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा था, हमें ये पता चल गया नेगेटिव वैल्यू आने से कि इससे बेहतर सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और बेहतर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। वैम में जो एलोकेशन थे आपके 151,631, ये जो एलोकेशन थे ये सम हाउ वी नीड टू चेंज। ठीक है, जब चेंज करेंगे तो मे बी वी विल गेट अ बेटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू वर्गस अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप नाउ इन दिस न्यूमेरिकल। एनी नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट दैट बेटर सॉल्यूशन कैन बी अचीव्ड फर्दर। ठीक है, तो सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब बेटर सॉल्यूशन मिलेगा, हमें ढूंढना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट दैट इफ वी डू एलोकेट ऑन द सेल इट विल रिजल्ट इन द प्योर सोल्यूशन। अगर ये सेल रिवोल्यूशन मैट्रिक्स जो आई है हमारी अभी हमने निकाली, इसमें अगर सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, ये -1 नहीं आता, यहाँ भी +1 आ जाता, तो आगे क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता। इसको हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमें वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी बेकार आंसर मिले। ठीक है, तो जीरो वैल्यू इंडिकेट दैट फर्दर इटरेशन विल नॉट चेंज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर जीरो आ जाता है कोई सेल, अगर -1 की जगह अगर जीरो आ जाती तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही रहता अगर मैं इटरेशन करता। बट ये है कि दिस विल बी द केस ऑफ ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी मुझे सॉल्यूशन जो है वो एक से ज़्यादा मिल जाते हैं, बट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल रिमेन सेम। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, देयर इज अ टाई, यहाँ पर -1 और -1 में टाई हो रहा है। तो इस केस में, अब टाई के केस में क्या करना है वो मैं आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। अगर यहाँ -3 आता, -1 की जगह अगर -3 आता, डेफिनेटली आई विल गो फॉर -3। तो इन दोनों सेल में से मैं -3 को चूज करता एलोकेशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि -1 दोनों ही सेल में -1 आ रहा है, तो आई विल चूज हेयर रेंडमली। ठीक है, तो आई विल चूज द सेल रेंडमली। दिस पॉइंट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। ठीक है, ये मैं किसी और न्यूमेरिकल में आपको डिस्कस करूंगा। अभी ये मान के चलो इस सेल में -1 में अगर टाई हो रहा था तो वी विल चूज द सेल आर्बिट्रेरली। नाउ करना कैसे है, व्हाट आर द रूल। तो वी हैव चूज सेल नंबर 13 आर्बिट्रेरली। दिस इज कॉल्ड बेसिक लूप। करस्पॉन्डिंग टू दिस बेसिक सेल ट्राई टू मेक अ लूप। ठीक है, उस सेल के रिस्पेक्ट में मुझे एक लूप बनाना है सो दैट यू गेट द नॉन बेसिक सेल बाय चेंजिंग इट्स प्रेजेंट एलोकेशन टू द जीरो। ठीक है, तो किसी एक सेल की पोजीशन मुझे जीरो करनी है, एलोकेशन जीरो करना है, और जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसमें, उस सेल में मुझे कोई एलोकेशन देना है। लूप मतलब एक क्लोज पाथ है, मस्ट बिगिन एंड एंड विद आइडेंटिफाइड बेसिक सेल, नो डायगोनल लाइन शुड बी देयर इन द लूप। अच्छा, लूप की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी तरीके से रहेगा, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो गया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। अगर आप देखोगे अपने एग्जाम में दिस लूप इज सफिशिएंट, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मतलब बहुत ही रेयर केस में ये वाले लूप बनते हैं, जस्ट लूप जो है वो रेक्टेंगुलर वाला ही बनता है। नो डायगोनल लाइन शुड बी देयर, तो इस तरीके से कोई ऐसा नहीं हो सकता है लूप। आपने ऐसा बना दिया, ऐसा बनाने के बाद एक डायगोनल लाइन निकाल दी। ठीक है, ऑल द ऑल अदर कॉर्नर्स ऑफ द क्लोज पाथ लाइन मस्ट पास द एलोकेटेड सेल। ठीक है, तो जितने भी जो भी हम लूप बनाएंगे वो एलोकेटेड सेल के रिस्पेक्टिव बनाएंगे। अब कैसे बनाना है ये ध्यान से सुन लो। मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों में से मुझे रेंडमली एक सेल चूज करना है। लेट अस से आई हैव चूजन दिस सेल रेंडमली। ठीक है, तो लेट अस नेक्स्ट स्टेप इज इटरेट टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्यूशन आया था, दिस वाज 1। एलोकेशन की वैल्यू कितनी थी, 1 5 1 6 3 एंड 1। तो एलोकेशन की वैल्यू लिख ली मैंने 1 5 1 6 3 1। अच्छा, ये क्या है, मैंने यहाँ लिखी है सप्लाई और यहाँ लिखी है मैंने डिमांड।
ठीक है, तो वैम के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिला था, एलोकेशन की ये वैल्यू मिली थी। तो यू कैन चेक 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 1, 6 + 3 + 1 इज इक्वल टू 10, 1 + 6 इज इक्वल टू 7, 1 3, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मुझे यहाँ पर कुछ एलोकेशन करना है, मुझे यहाँ पर -1 आया सेल एलोकेशन, सेल एवोल्यूशन मैट्रिक्स में मुझे यहाँ पर कुछ एलोकेशन करना है। अब यहाँ अगर एलोकेशन करना है तो इस सेल से मुझे एक क्लोज लूप बनाना है। अब क्लोज लूप इस तरीके से बनाना है, दैट शुड कंटेन एलोकेटेड सेल। ठीक है, अगर मैं इस सेल से ये क्लोज लूप बनाऊंगा, दिस विल नॉट बी अ वैलिड क्लोज लूप, क्योंकि इस कॉर्नर पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस लूप से इस तरीके से क्लोज लूप बनाता हूं, तो इन दिस लूप व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स 3, ये 3 एक कॉर्नर पॉइंट 3 हो गया, एक 1 हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड लूप। तो मुझे लूप इस तरीके से बनाना है that other 3 corners या other corners of the loop should contain a allocated value। ठीक है, लूप बनाने के बाद जहां पर मुझे एलोकेशन देना है, यहाँ पर ये सेल मैंने रेंडमली चूज किया था, यानी यहाँ तो मुझे एलोकेशन देना ही है। अब कितना एलोकेशन देना है मुझे अभी नहीं पता, मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर मैंने माइनस साइन कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक माइनस साइन दे दिया। माइनस साइन यहाँ पर वैल्यू है 1 और यहाँ पर वैल्यू है 3। तो ये थंब रूल बना लो, जिस कॉर्नर पे मैंने माइनस दिया है और उसमें जो वैल्यू जो कम है उसी को मैं प्लस माइनस करूंगा। यहाँ पे 1 और 3 में मतलब नेगेटिव कॉर्नर एक 1 है और एक 3 है, 1 इज लेस देन 3। तो मैं जितनी भी हेरा फेरी करूंगा एलोकेशन की, वो मैक्सिमम 1 की कर सकता हूँ, 1 से ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, लेट अस मेक यहाँ, या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया +1, यहाँ मैंने कर दिया -1। तो इसी तरीके से करना है, प्लस माइनस, यहाँ कर दिया मैंने, इस कॉर्नर पे लिख दिया मैंने +1 और इस कॉर्नर पे लिख दिया मैंने -1। तो यहाँ जब +1 कर दिया तो टोटल एलोकेशन की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ 1 - 1 कर दिया तो एलोकेशन की वैल्यू हो गई 0, 6 + 1 कर दिया एलोकेशन की वैल्यू हो गई 7, और यहाँ 3 - 1 कर दिया तो एलोकेशन की वैल्यू हो गई 2। नाउ द न्यू एलोकेशन बिकम, यहाँ दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स, ये ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन दे रखा है। नाउ अवर न्यू एलोकेशंस आर दिस आर 1, यहाँ 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 6 + 1 इज इक्वल टू 7, और यहाँ हो गया हमारा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बाकी के एलोकेशन मैंने टच नहीं करा है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया 5, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया 1। ठीक है, इसको मैंने सॉरी, ये यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, 2 3 4 5 6। तो नाउ न्यू एलोकेटेड सेल वैल्यू इज दिस। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जस्ट कीप इन माइंड, जो भी हम एलोकेशन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, चेंज द एलोकेशन वैल्यू। हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिला सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स में दैट दिस वैल्यू इज, कोई वैल्यू अगर -1 आ रही है, इसका मतलब हमें क्या करना है, जुगाड़ जुगाड़ लगा के एलोकेशन चेंज करना है, और एलोकेशन जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी बेटर सॉल्यूशन मिलेगा एज कम्पेयर टू वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमें एलोकेशन इस तरीके से चेंज करना है दैट डिमांड इन ईच कॉलम एंड सप्लाई इन ईच रो शुड नॉट बी चेंज। इसी पर्पज से हमने लूप बनाया, इसी पर्पज से हमने +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 किया, so that our demand and supply in each rows and column will not disturb। तो let us check, 5 + 1 is equal to 6। तो प्लांट नंबर ए में क्या हो रहा था, 6 मिलियन लीटर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था। 1 is equal to 1, 7 + 2 + 1 is equal to 10। PQRS सप्लाई हमारी डिमांड कितनी थी, यहाँ पर 7 की थी तो 7 कंप्लीट हो गई, 5 की थी 5 कंप्लीट हो गया, 2 + 1 is equal to 3, 1 + 1 is equal to 3। तो इन दिस no demand and supply is disturbed and we have allocated new cell। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने एलोकेशन चेंज किया। अब एलोकेशन से
फायदा क्या हुआ ये समझ लो। तो यहाँ पर मैंने न्यू एलोकेशन सेल आर 511,721, तो लेट अस सी, यहाँ पर लिख दिया मैंने 511,721। नाउ यू कैन सी total transportation cost become 3 into 5 plus 11 into 1 plus 1 into 1 plus 5 into 7 plus 15 into 2 plus 9 into 1. It will be 10,000, क्योंकि यूनिट कॉस्ट थी 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 10,100 रुपी। तो वैम से जो आंसर आ रहा 10,200 रुपीज़, और पहले इटरेशन के बाद जब मैंने इटरेशन नंबर 1 किया by the Modi method, now our transportation cost will become 10,100 rupees. It means total profit कितना हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जबकि कोई भी मैंने एक्स्ट्रा ट्रक परचेज नहीं किया, कोई भी मैंने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, कोई भी मैंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 100 रुपीज हो गया। नाउ स्टार्ट द इटरेशन नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि 10,100 जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं, वी नीड टू चेक। तो हम जितने स्टेप हमने अभी करें वो सारे के सारे स्टेप हमें फिर से परफॉर्म करने पड़ेंगे। नाउ अवर न्यू आंसर विल बिकम दिस, ये हमारा नया आंसर हो गया। अब वेम मेथड में जो आंसर रहता है उसको भूल जाओ, वो हमें याद नहीं रखना है। नाउ दिस इज अवर न्यू एलोकेटेड सेल मैट्रिक्स। तो यू कैन सी इन दिस मैट्रिक्स कॉस्ट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी एलोकेटेड सेल के रिस्पेक्ट में 3, 11, 1, 5, 15 एंड 9। तो ये मैंने लिख दी 3, 11, 1, 5, 15 एंड 9। विद रिस्पेक्ट टू दिस अगेन आई विल कैलकुलेट U1, U2, U3, V1, V2, V3 and V4. Let us make a equation U1 plus V2, U1 plus V2 is equal to 3, U1 plus V3 is equal to 11, U2 plus V4 is equal to 1, U3 plus V1 is equal to 5, U3 plus V3 is equal to 15, and this U3 plus V4 is equal to 9। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 6 एंड टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 7। तो एक वेरिएबल को मैंने 0 पुट कर दिया, V1 इज इक्वल टू 0। तो जब V1 को मैंने 0 पुट किया, U3 की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, U3 की वैल्यू अगर 5 आ गई तो V3 की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। V4 की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। V1 की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी थी, V1 की वैल्यू 0 हो गई थी। U1 की वैल्यू कैसे आएगी, U1 प्लस V3 की वैल्यू है 10, तो U1 कितना हो जाएगा 1। U1 की वैल्यू 1 आ गई तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U2, U2 की वैल्यू है U2 प्लस V4 है हमारा 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो दिस आर द न्यू वैल्यूज ऑफ U एंड B विच इज कॉल्ड ड्यूल वेरिएबल। तो 1 प्लस 0 अगेन बैक एंड सेल हो जाएंगे, येलो कलर से मैंने शो कर रखे हैं। दिस 1 प्लस 0 U प्लस V 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माइनस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1, -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 and 5 plus 2 is equal to 7. So again we have calculated implicit cost matrix for the vacant cell. So this will become 1, 5, -3, -1, 7 and 7. So this has written here. ठीक है, अगेन ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी वो हमने फिर से ले ली। दिस इज नथिंग बट CIJ, और ये जो वैल्यू आई हमारी UI प्लस VJ की वैल्यू आई। तो सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स निकालना है हमें CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो इसको हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस -3 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस -1 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 7 is equal to -1 and 8 minus 7 is equal to 1. Now this cell evolution, now observe this cell evolution matrix. In this one term is negative,
वन टर्म इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी चांसेस हैं सोल्यूशन जो है वो हमें इम्प्रूव मिलेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता, -1 की जगह +1 आ जाता तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, आगे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी कंसिडर विच वाज विच हैज कम आफ्टर द इटरेशन नंबर 2। ठीक है, 10,100 ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं। एलोकेशन को इधर उधर करके हम फिर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो कोई टाई तो हो नहीं रहा है, दो जगह तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, एक ही जगह नेगेटिव आ रहा है, तो आई विल सी दिस सेल। तो ये सेल कौन सा हो गया, दिस इज सेल नंबर 2 3, ये सेल नंबर 2 3 हो गया इसकी लोकेशन। तो मैं सेल नंबर 2 3 को ही पकड़ के चलूंगा। नाउ अगेन लास्ट स्टेप इज इटरेट टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमें एलोकेशन जो है वो चेंज करना है, एलोकेशन चेंज करना है। तो लेट अस सी एलोकेटेड एलोकेशन में एलोकेशन की वैल्यू क्या थी, 5 1 1 7 2 1। तो मैंने लिख ली यहाँ पर 5 1 1 7 2 1। नाउ यहाँ पर माइनस आया था सेल रिवोल्यूशन सेक्टर में, यहाँ पर माइनस आया था, तो मुझे लूप बनाना है, इस सेल को लेके एक लूप बनाना है। अगर मैं लूप इस तरीके से बनाऊं तो वैलिड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर मैं लूप इस तरीके से बनाऊं तो क्या वैलिड होगा, ये भी वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, द ओनली पॉसिबल लूप इज दिस। अब लूप क्लॉकवाइज बनाओ या एंटी क्लॉक बनाओ, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा, यहाँ मैंने नेगेटिव लिखा, यहाँ पॉजिटिव लिखा, यहाँ नेगेटिव लिखा। अब कितना मैं नेगेटिव कॉर्नर देखो 1 और 2, यानी मैं 1 की हेरा फेरी कर सकता हूँ। ठीक है, 1 एलोकेशन ही मैक्सिमम में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया +1, यहाँ कर दिया -1, यहाँ कर दिया मैंने +1 +1 और यहाँ कर दिया -1। तो +1 हो गया इज इक्वल टू 1, एलोकेशन वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 - 1 यहाँ पर 0 हो गया, 1 + 1 यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ हो गया 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो नई एलोकेशन वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ मिल गई 1, यहाँ 0 मिल गई तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मिल गई मुझे 2, और यहाँ मुझे मिल गई 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ जो एलोकेशन मैंने डिस्टर्ब नहीं किए उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ 7 लिख दिया। ठीक है, तो अभी भी आप चेक कर सकते हो, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 1, और यहाँ पर कितना आ रहा था 7 2 9 और 1 10। यहाँ पर 7 की रिक्वायरमेंट थी वेयर हाउस में, यहाँ 5 की थी, 1 + 1 + 1 यहाँ पर 3 की थी, और यहाँ 2 की थी। 7 + 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 17। तो डिमांड और सप्लाई अभी भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। यहाँ मैंने क्या किया, इटरेशन नंबर 2 में मैंने एलोकेशन चेंज कर दिया। अब एलोकेशन चेंज करने से क्या फायदा हुआ वो देख लेते हैं। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बिकम 3 × 5 + 11 × 1 + 6 × 1 + 5 × 7 + 15 × 1 + 9 × 2। इट विल बिकम 100 into, और यूनिट कॉस्ट है तो 100 into it will become 10,000. So you can see the new allocated cell 5 9 5 1 1 7 1 इसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला, आंसर हमारा चेंज हो गया। यानी दिस सॉल्यूशन इज बेटर देन इटरेशन नंबर 1। तो इटरेशन नंबर 2 के बाद जो सॉल्यूशन आया इट इज बेटर देन इटरेशन नंबर 1। नाउ फर्दर वी स्टार्ट इटरेशन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि अभी सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट अगर हमारा नेगेटिव है देन वी नीड टू डू इटरेशन नंबर 3। तो लेट्स स्टार्ट द इटरेशन नंबर 3। नाउ अवर आंसर इज दिस। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट मैट्रिक्स लेंगे 3 11 6 5 15 एंड 9। 3 11 6 5 15 एंड 9। अगेन कैलकुलेट ड्यूल वेरिएबल। सी दिस इज इटरेशन नंबर 3। दो इटरेशन में हमने 100 रुपए की बचत कर ली। नाउ दिस इज इटरेशन नंबर 3, v1 v2 v3 and v4। अगेन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ड्यूल वेरिएबल u1 +
u1 plus v2 is equal to 3, u1 plus v3 is equal to 11, u2 plus v3 is equal to 6, u3 plus v1 is equal to 5, u3 plus v3 is equal to 15, and u3 plus v4 is equal to 9. Again put the value of v1 is equal to 0. 7 अननोन है और 6 इक्वेशन है, किसी एक अननोन को मुझे 0 पुट करना पड़ेगा. v1 is equal to 0. v1 अगर 0 हो गया तो u3 की वैल्यू कितनी हो गई 5. लेट अस सी, मैंने 5 यहाँ पर लिख दी. ठीक है, v1 को 0 रखने पे u3 5 आ गया. u3 5 आ गया तो v3 की वैल्यू क्या हो गई 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. v4 की वैल्यू क्या हो गई 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. v1 की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया. u1 की वैल्यू u1 प्लस v3, u1 प्लस v3 की वैल्यू कितनी है v3 की वैल्यू है 10. तो 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1. u1 की वैल्यू हो जाएगी 1. एक बार u1 की वैल्यू आ जाएगी तो u2 की वैल्यू v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2 की वैल्यू हो जाएगी u2 प्लस v3 की वैल्यू है हमारे पास 10. तो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, तो अगेन कैलकुलेट दिस वैल्यू वैकेंट सेल मैट्रिक्स. 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 4, यानी वैकेंट सेल के रिस्पेक्ट में हम वैकेंट सेल मैट्रिक्स निकाल लेंगे. यू आई प्लस वीजे को प्लस करके 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, माइनस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. तो लेट अस चेक 1 5 माइनस 4 माइनस 2 0 ऐसे. तो ये जो मैट्रिक्स अभी हमने निकाली 1 5 माइनस 4 माइनस 2 0 एंड 7. अगेन सी द ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स सी आई जे. अच्छा, तीनों इटरेशन में ये ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स विल नॉट चेंज. तो ये क्या है हमारा सी आई जे कॉस्ट मैट्रिक्स है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था. नाउ कैलकुलेट सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स. सेल इवोल्यूशन मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 0 माइनस माइनस 2 is equal to 2, 1 minus 0 is equal to 1, and this 8 minus 7 is equal to 1. Now you can see there is no negative term in the cell evolution matrix. All the values are, all the Ci minus Ui plus Vj value is greater than 0. It means further optimal solution does not exist. Optimal solution does not exist. क्वेश्चन हमारा यहीं एंड हो जाएगा और वी कैन से एल्गोरिथम इज टर्मिनेटेड. तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा और वी कैन से नाउ फर्दर इटरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड मतलब इटरेशन नंबर 2 के बाद जो सॉल्यूशन आया था 10,000, दिस इज नथिंग बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. यानी 10,000 से कम का खर्चा नहीं हो सकता किसी भी तरीके से. 10,000 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे इफ वी वांट टू डिमांड और सप्लाई को अगर हमें बराबर करना है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोदी मेथड. तो प्लीज practice the other numerical